Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 2, Structure of Sentence, Simple, Compound and Complex. So let's start the chapter. Chapter number 2, Structure of Sentences, Simple, Compound and Complex. Study the following sentences carefully. The lion jumped into the wall. Aman is reading but Naman is playing. If you come to me, I would go with you. The sentence 1 contains a subject, the lion, and a predicate jumped into the well. Hence, this is a simple sentence. पहले sentence में एक subject है, the lion, और एक predicate है, jumped into the wall. तो ये एक simple sentence है. The sentence 2 contains two sentences of equal rank and joined with coordinating conjunction. सेकेंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस हैं और वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन हुए हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है? बट. हेंस इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. द सेंटेंस 3 contains two sentences, one depend upon the other and joined by the subordinating conjunction if. सेंटेंस 3 में दो सेंटेंसेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये जॉइन है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, इफ से. हेंस इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. दस द सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो सबसे पहले जानते हैं सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस इज द वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं. एग्जाम्पल्स: आई रीड अ बुक, चिल्ड्रन आर प्लेइंग. सेकेंड, कंपाउंड सेंटेंस. A compound sentence is the one that is made up of two or more coordinate clauses. Compound sentence वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा coordinate clauses से बना होता है. Examples: I like mathematics but my sister likes English. She went to the window and looked out but saw nobody. The first sentence consists of two parts. First sentence पे दो parts हैं. I like mathematics. My sister likes English. These two parts are joined together by the coordinating conjunction but. और ये दोनों ही parts join हुए हैं coordinating conjunction but से. Each part is a clause. और इनका जो एक एक part है वो क्या है? एक एक clause है. Because each part has a subject and the predicates of its own. क्योंकि हर part का अपना subject भी है, predicate भी है. तो इसीलिए इस sentence के दोनों part clause हैं. एक first clause, एक second clause. And each part is a sentence which is a part of larger sentence. और दोनों ही part एक एक sentence भी हैं जो एक बड़े sentence का part हैं. We further notice that each clause makes good sense by itself and hence can stand alone as a complete sentence. और हर sentence मतलब जो clause है हर, उसका meaning भी इतना मतलब proper है कि आप उसे as a sentence भी use कर सकते हैं. Each clause is therefore independent of the other or of the same order or rank. और कोई भी जो इसका clause है वो एक दूसरे पर depend नहीं करता. एक अलग है, एक बिल्कुल अलग है, दोनों सेम रैंक के हैं. Such a clause is called a coordinate clause. तो ऐसी clause को हम कहते हैं coordinate clause. Such a sentence as the first which is made up of two clauses of equal rank is called compound sentence. तो इन sentence को हम कहेंगे compound sentence. The second sentence is also a compound sentence. Second sentence भी compound sentence है. It is made up of three clauses of equal rank. इसमें तीन clauses हैं equal rank के. She went to the window, अलग statement. She looked out and she saw nobody. तो ये तीनों ही अलग अलग तीन clauses हैं. Third, complex sentence. A complex sentence is the one that is made up of one principal clause and one or more subordinate clauses. जो complex sentence होता है उसमें एक तो main principal clause होती है और बाकी की एक से ज़्यादा
सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई नो द बॉय हु स्टोल योर वॉच। दिस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इस सेंटेंस में भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आई नो द बॉय हु स्टोल योर वॉच। Each part has a subject and a predicate of its own and form a part of a larger sentence. यहाँ पर भी दोनों पार्ट में अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है। Each part is therefore called a clause. इसीलिए इसका भी एक एक पार्ट क्या कहलाएगा? क्लॉज। एक क्लॉज ये और एक क्लॉज ये। We further notice that the clause I know the boy makes good sense by itself and can stand alone as a complete sentence. अब हम देखते हैं कि जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है I know the boy, ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसे हम एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह अलग से भी यूज कर सकते हैं। Such a clause is called the principal और main clause. तो इसलिए इसको हम कहेंगे principal clause या main clause. But the clause who stole your watch, अब ये जो है दूसरी clause who stole your watch does not make good sense by itself and cannot stand alone. तो इससे कुछ बहुत अच्छी सेंस नहीं आ रही और ना ही हम इसको सिर्फ इतने से पार्ट को एक सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं। इट इज डिपेंडेंट फॉर इट्स फुल मीनिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज। ये अपने पूरे मीनिंग के लिए पहले वाली क्लॉज पर डिपेंड करती है। आई नो द बॉय, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसीलिए इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे या डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। Such a sentence as this, which is made up of one principal clause and one or more subordinate clauses, is called a complex sentence. तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और उसके बाद एक या उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को हम कैसे जॉइन करते हैं? फर्स्ट, कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। जब हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस में ज्वाइन करते हैं। सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस टू मेक वन सेंटेंस आर डिस्कस्ड बिलो। तो यहाँ पर कुछ वेज दिए गए हैं जिससे हम सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब। जब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं मतलब टू प्लस वर्ब का। The following examples show how two simple sentences are combined using an infinitive. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स गिवन है उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस इन्फिनेटिव के साथ मतलब टू प्लस वर्ब के थ्रू ज्वाइन किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल से कि अमित वेंट टू मुंबई, ही वांटेड टू स्टडी कंप्यूटर साइंस। तो इसे हम कैसे ज्वाइन करेंगे? अमित वेंट टू मुंबई टू, अब टू के साथ सीधे वर्ब आ जाएगी, टू स्टडी कंप्यूटर साइंस। Pawan is very slow, he cannot win the race. तो Pawan is too slow to, सीधे आ जाएगी win verb the race. नेक्स्ट आता है by using a present participle. एक तरीका होता है present participle का यूज करके मतलब verb के साथ ing लगा के। The following examples show how two simple sentences are combined using a present participle. तो अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स में कि कैसे हम दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। एग्जाम्पल देखिए, आन्या ओपन द बैग, शी टुक आउट द स्टोरी बुक। तो यहाँ पर हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर वर्ब ओपन है तो ये हो जाएगा ओपनिंग द बैग, आन्या टुक आउट द स्टोरी बुक। आरव एंटर्ड द ऑफिस, ही स्विच्ड ऑन द लाइट। तो इसका क्या बनेगा? एंटरिंग द ऑफिस, आरव स्विच्ड ऑन द लाइट। अब सेकेंड वे है कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, या फिर हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दें। तो यहाँ पर भी कुछ वेज दिए गए हैं किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ज्वाइन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये देखिए इसका, बाय यूजिंग कंजंक्शन सच एज एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कुछ कंजंक्शंस का यूज करके जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एग्जाम्पल्स देखिए, आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट अ लैपटॉप। तो इसका क्या बन जाएगा? आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ लैपटॉप। ही रीड, ही रोट, ही रीड एज वेल एज ही रोट। सेकेंड बी पार्ट,
by using conjunctions like but or still का use करके. Examples: Sumit is short, his sister is tall. तो इसको कैसे बनेगा? Sumit is short but his sister is tall. He is old and weak, he can look after himself. He is very old and weak, still he can look after himself. C, by using conjunctions like therefore or so. Therefore और so conjunctions का use करके. Example: he is weak, he cannot work hard. He is weak, therefore he cannot work hard. The shops were closed, we could not find anything. The shops were closed, so we could not buy anything. Third way, combining two or more simple sentences into one complex sentence. तीसरा तरीका है कि हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दें कंबाइन करके. We can combine two or more simple sentences into one complex sentence by changing one of the sentence into an adjective clause, an adverb clause or a noun clause. तो हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे अगर, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी एक सेंटेंस को हमें या तो एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा या एडवर्ब क्लॉज में या नाउन क्लॉज में. तो पढ़ते हैं किस तरीके से हम क्लॉज में चेंज करते हैं. बाय चेंजिंग वन ऑफ द सेंटेंस इनटू एन एडजेक्टिव क्लॉज. तो किस तरीके से हम किसी सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करते हैं. दिस इज द प्लेयर, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज में कैसे चेंज होगा? This is the player who stood first in the class. This is the road. It will take you to Aligarh. This is the road which will take you to Aligarh. The woman is a painter. You met her yesterday. The woman whom you met yesterday is a painter. In the sentences given above, the clauses in color are adjective clause. तो ये जो यहाँ पर clauses हैं कलर्ड में, ये एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं. एडजेक्टिव क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स. एडजेक्टिव क्लॉजेस को हम कौन से वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं? हु, व्हिच, व्हाई, देयर, दोज, हुम, एटसेट्रा. अब बी आता है बाय चेंजिंग वन ऑफ द सेंटेंस इनटू एन एडवर्ब क्लॉज. या फिर हम किसी सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज में चेंज कर दें. तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं. रोहित हायर्ड अ टैक्सी, ही वाज गेटिंग लेट. Rohit hired a taxi because he was getting late. We visited Porbandar. Gandhiji was born there. So we visited Porbandar where Gandhiji was born. Or examples: the match could not be played. It rained heavily. Since it rained heavily, the match could not be played. Deepa came to the stage. Deepa started singing. As soon as Deepa came to the stage, she started singing. I was getting ready. The telephone bell rang. I was getting ready when the telephone bell rang. In the sentence given above, the clauses in color are adverb clauses. तो यहाँ पर जो colored words हैं वो adverb clauses हैं. We can see that adverb clauses are introduced by using words like. या आप देख सकते हो कि जो एडवर्ब क्लॉजेज हैं उनको आपने कैसे इंट्रोड्यूस किया है, कौन से वर्ड्स का यूज करके? बिकॉज, वेयर, सिंस, एज सुन एज, व्हेन, एटसेट्रा. अब सी आता है बाय चेंजिंग वन ऑफ द सेंटेंस इनटू नाउन क्लॉज. या फिर हम किसी एक सेंटेंस को नाउन क्लॉज में चेंज करते हैं. तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं. द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर. इट इज सर्टेन. इट इज सर्टेन दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर. The astronomers proved his long back. The earth is round. The astronomers proved this long back that the earth is round. She knew this. She had made a mistake. She knew that she had made a mistake. He would be present. Mayank said this. Mayank said that he would be present. I do not know. Why did he shout? I don't know why he shouted. तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं एक सेंटेंस को क्लॉजेस में. इन द सेंटेंस गिवन अबव द क्लॉजेस इन कलर आर नाउन क्लॉजेस. तो यहाँ पर जो कलर्ड वर्ड्स में सेंटेंसेस लिखे हैं वो नाउन क्लॉजेस हैं.
Now time to answer. A. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे. First is according to the structure the sentences are of. यहाँ पर structure के हिसाब से sentences कितने type के बताए हैं? 3 types के, simple, complex and compound. तो इसका आंसर होगा A. Next, simple sentence has only a. सिंपल सेंटेंस में इनमें से क्या होता है? सिर्फ सब्जेक्ट. का आंसर भी होगा ए. नेक्स्ट, द सेंटेंस ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉज आर जॉइंड विद. जो कोऑर्डिनेट क्लॉज के सेंटेंस होते हैं वो किससे जॉइन होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. तो इसका आंसर भी होगा, तो इसको भी हम ए पर मार्क कर देते हैं. नाउ B question. Read the sentences carefully and write either the compound or complex sentences. आपको sentences पढ़कर बताना है कि ये compound है या complex है. First, when I went to the beach this morning, I met my old friend whom I had not seen for 3 years. ये sentence है complex sentence. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बाकी के sentences हैं, जो बाकी की क्लॉजेस हैं, वो पहले वाली पर डिपेंड करती है कि हम जिससे बीच पर मिले थे वो ही मेरा ओल्ड फ्रेंड है जिससे मैं इतने सालों से, मतलब 3 सालों से नहीं मिला. तो यहाँ पर जो आगे के दोनों क्लॉजेस है वो पहले वाले पर ही डिपेंड करते हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ही डज नॉट नो हु हैज स्टोलन योर पेन. तो ये भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर भी सेकेंड क्लॉज फर्स्ट पर ही डिपेंड करती है. Then next, night came and the rain fell heavily and we all got wet. तो ये compound sentence है क्योंकि यहाँ पर हम तीनों clauses को as a sentence भी use कर सकते हैं. तो इसी तरह से बाकी के parts आप खुद try करेंगे. Now C question. Combine the following pairs of sentences using the infinitive, to plus verb और the present participle verb plus ing. अब आपको पेयर ऑफ सेंटेंसेस को कंबाइन करना है इन्फिनेटिव का यूज करके या प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके. तो फर्स्ट देखिए, आई एम नॉट अफ्रेड आई विल स्पीक द ट्रूथ. तो इसमें आ जाएगा आई एम नॉट अफ्रेड टू के साथ सीधा वर्ब टू स्पीक द ट्रूथ. Now second, we took 6 hours. We reached the top. तो यहाँ पर आ जाएगा taking 6 hours. यहाँ पर हमने verb में ing लगा दी. Taking 6 hours, we reached the top. इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करके देखेंगे. नाउ डी, कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग द कंजंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ ब्रैकेट में जो कंजंक्शंस गिवन है उनकी हेल्प से आपको सेंटेंसेस को कंबाइन करना है. तो फर्स्ट है, अंकित स्पोक टू द वुमेन काइंडली ही हेल्प्ड हर विथ मनी. तो यहाँ पर आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करना है. तो अब इसका सेंटेंस हम फिर से फ्रेम कर लेते हैं. अंकित, अब यहां पर आएगा अंकित नॉट ओनली स्पोक टू द वुमेन काइंडली. अंकित ना ही सिर्फ वुमेन से काइंडली बात करता है बट ही ऑल्सो हेल्प्ड हर विथ मनी. बल्कि उसकी पैसे से भी हेल्प करता है. तो इस तरीके से हमने दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया है. सेकेंड, जय इज वीक इन इंग्लिश ही इज स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स. तो यहाँ पर दोनों बातें कही गई हैं बट जॉइन से जॉइन करना है हमें. तो हम लिखेंगे जय इज
weak in English, but he is strong in mathematics. But he is strong in mathematics. अब इसका थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं. वी वेंट टू केरला इन मे, वी रिटर्नड इन जुलाई. तो इसको हमें एंड से ज्वाइन करना है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? वी वेंट टू केरला इन वी वेंट टू केरला इन मे, हम मई में केरला गए थे, एंड रिटर्नड इन जुलाई. तो इस तरीके से हम कंजंक्शंस का यूज करके सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. अब इसके बाकी के दोनों पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे. नाउ ई, combine the following pair of sentences with complex sentence by changing the sentences in color into adjective clauses. यहाँ पर आपको sentences को complex sentence में change करना है, combine करना है. जो colored में sentences given हैं उन्हें आपको adjective clause में change करना है. तो यहाँ पर first है the train does not stop here, it goes to Chennai. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? द ट्रेन डज नॉट स्टॉप हियर विच गोज टू चेन्नई. Now second part, the woman is still in the hospital, she was injured in an accident. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? The woman is still in the hospital who was injured in an accident. इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे. Now F, combine the following pair of sentences into complex sentence by changing the sentence in color into noun clause. अब आपको जो colored में sentences given है इन्हें noun clause में change करके sentence को complex sentence बनाना है. तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट है मनु न्यू दिस द ट्रेन वॉज लेट. तो यहाँ आ जाएगा मनु न्यू दैट द ट्रेन वॉज लेट. Now second, I don't know this, how am I going to get my money back? तो यहाँ पर आ जाएगा I don't know how I am going to get my money back. Now, third part. My friend said this. He did not know the way to the post office. So, yeah. My friend said that he did not know the way to the post office. तो इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर फिनिश हो गया है.
होपफुली आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।